Hello everyone, welcome to my channel. Guys, today we are going to discuss about the types of preference share. Guys, in our previous video we had learned and we had discussed about the preference shares and the features of the preference share. So guys, in today's video we are going to learn about the what are the types of the preference shares. Now guys, before to understand what are the types of the preference share, we first need to understand what is the preference share. जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बता दिया है कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं. बट इफ़ वी हैव टू लर्न about the types of preference share, so basically first we need to understand what is the preference share. So in short, we will learn what is the preference share. Now guys, see, a share which have the privileges and priority certain privileges and priority to get some preferential right, it is known as the preference share. Means a share which have the certain preferential right are called the preference share. वो शेयर जिनके पास कुछ प्रिफरेंशियल राइट्स होते हैं या फिर कुछ प्रिविलेजेस राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, दैट शेयर इज नोन एज द प्रिफरेंस शेयर. नाउ विच काइंड्स ऑफ दे हैव द राइट. सो फर्स्ट दे हैव द राइट अबाउट द डिविडेंड. They have the right to get dividend, okay, before the equity shareholder. Means they will get dividend at a fixed rate. If whether the company has the less profit or whether the company has the more profit, they will get dividend at the fixed rate. And the next preferential right has to get the return of capital at the time of winding up. Means one, the preferential capital means preferential shareholder had the right to get their capital return at the time of the winding up of the company. Means जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी क्लोज होती है, लिक्विडेट होती है, at that time the preference shareholder has the right to get their capital return. Okay, so this is the rights of the preference shareholders. Now students, मैंने आपको जैसे बता दिया है कि प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं विच शेयर्स हैव द सर्टेन प्रिविलेजेस और द सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट. मतलब कुछ अधिकार होते हैं, प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, इसके लिए उन्हें प्रेफरेंशियल कहा जाता है. दैट्स वाई दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इक्विटी शेयर. इसके लिए क्या होते हैं, इक्विटी शेयर से डिस्टिंक्ट होते हैं, मीन्स अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ओके, सो दे हैव द राइट द प्रायर पेमेंट ऑफ द कैपिटल. मतलब कैपिटल उनको मिलने का प्रायोरिटी होता है. और पहला मैंने आपको बता दिया कि दे गेट द डिविडेंड, उनको डिविडेंड मिलता है एट द फिक्स रेट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दे हैज द टोटल 8 टाइप्स ऑफ द preference shares. The first one is the cumulative and non-cumulative preference shares. Second, participating and non-participating preference shares. Third, convertible and non-convertible preference shares. And fourth one is the redeemable and irredeemable preference shares. Now guys, we will first see what are the cumulative preference shares and non-cumulative preference shares. Guys, see what has written there. Cumulative preference shares are those shares on which dividend goes on accumulating until it is fully paid. Okay guys, जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि इफ़ सपोज़ हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ हम 2018 की बात करते हैं. सपोज़ किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने क्या किया है, उसने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स परचेज़ किए. ओके, कौन से टाइप्स के परचेज़ किए उसने, क्यूमुलेटिव. ओके, सो उसने परचेज़ किए, कभी किए 2018 में किया. सो अगर उसने प्रेफरेंस शेयर्स परचेज़ किए हैं तो डेफिनेटली उनका डिविडेंड बनता है. ओके, तो सपोज़ उसने कितना 10,000 के उसने प्रेफरेंस शेयर्स परचेज़ कर लिए. तो अगर हम बात करें 10,000 के परचेज़ कर लिए हैं तो 10% के हिसाब से अगर उसका 10% प्रेफरेंस शेयर्स है तो 10,000 के हिसाब से 10% के अगर हम लोग डिविडेंड की बात करें तो 10,000 का 10% 1,000 हो जाएगा. मीन्स
उस साल उसे कितना मिलना चाहिए, 1000 डिविडेंड मिलना चाहिए उस एक साल के लिए। 2018 के लिए उसको 1000 उसका डिविडेंड बनता है। ओके, तो क्या होता है कि कंपनी अभी उस साल क्या हुआ कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर कुछ सरप्लस नहीं बचा कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए, तो कंपनी क्या बोलती है कि एक काम करते हैं, नेक्स्ट ईयर आपको हम दे देते हैं, इस साल कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, ज़्यादा इनकम नहीं हुई है कंपनी को, दैट्स वाई वी विल गिव यू नेक्स्ट ईयर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर ले लेंगे। ठीक है, अभी 2018 के बाद क्या आया, 2019, अगेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिला। क्या नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला, इनकी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ। अब जब 2020 आया तो क्या हुआ, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड बांट रही है। तो अभी जब भी 2020 में वो डिविडेंड बांट रही है तो 2020 में स्टूडेंट वो सिर्फ 2020 का डिविडेंड नहीं देगी, वो 2018, 2019 और प्लस 2020, मतलब वो तीनों साल के डिविडेंड को ऐड करके देगी। मीन्स 2018 का 1000, 2019 का 1000 एंड 2020, मतलब टोटल एक्यूमुलेटेड कितना देगी डिविडेंड, वो 3000। मतलब उसने जो लास्ट 2 ईयर्स के डिविडेंड नहीं दिए उसे भी वो प्लस करके देगी। और इस टाइप्स के शेयर्स को क्या बोला जाता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अंडरस्टूड, मीन्स दिस काइंड्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर दे कैन गेट देयर एरियर्स डिविडेंड, जो उनके अनपेड एरियर्स डिविडेंड रह गए हैं वो उसको अपने करंट ईयर में ले लेते हैं, वो उनको मिल जाता है। ओके, मीन्स दिस काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर गेट देयर एरियर्स ऑफ डिविडेंड। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस तरह के जो शेयर्स होते हैं दैट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नोन एज द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ स्टूडेंट्स सी व्हाट हैज रिटन, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स ऑन विच डिविडेंड गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिव मतलब कंबाइन होके मिलेगा, क्या होके मिलेगा, कंबाइन होएगा, अनटिल इट इज़ फुल्ली पेड, मतलब तब तक उसका डिविडेंड प्लस होता रहेगा जब तक उसका पूरा डिविडेंड उसको फुल्ली पेड ना हो जाए, जब तक उसका पूरा डिविडेंड उसको फुल्ली पेड ना हो जाए। मीन्स 2080 का डिविडेंड 2019 का ये क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था। 2018 का 1000, 2019 का 1000, 2000 हो गया, 2020 का 1000, टोटल कितने हुए, 3000। अब जब तक कंपनी उसको 3000 नहीं पे करेगी तब तक और आगे के जो भी ईयर्स के डिविडेंड आएंगे वो उसमें प्लस होते रहेंगे। मीन्स एक्यूमुलेटिंग मीन्स कंबाइंड होते रहेंगे, प्लस होते रहेंगे जब तक अनटिल इट इज़ फुल्ली पेड, जब तक वो पूरा पेड नहीं कर देते अपने शेयर होल्डर को। अंडरस्टूड, दिस मीन्स इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन 1 or more ईयर ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रॉफिट देन दिस अनपेड डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड। मतलब अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं पेड किया एक या एक से ज़्यादा सालों का, या कंपनी में कुछ मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ, इनएडिक्वेट हुआ, मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट कंपनी को नहीं हुआ, इसकी वजह से कंपनी ने अगर डिविडेंड पेड नहीं किया एक या एक से ज़्यादा साल का, तो क्या होएगा, तो जो भी अनपेड डिविडेंड है वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, मीन्स कंबाइन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिस एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड व्हेन कंपनी परफॉर्म वेल। ये जो कंबाइंड डिविडेंड है जो भी प्लस होते आ रहा है लास्ट ईयर्स से ओके, जो नहीं दिया गया है, दैट ऑल अनपेड डिविडेंड विल बी एक्यूमुलेटेड एंड कंपनी विल पेड दैट ऑल डिविडेंड व्हेन कंपनी परफॉर्म वेल। मतलब जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, व्हेन द कंपनी विल गेट प्रॉफिट एट दैट ईयर द कंपनी गिव द ऑल एक्यूमुलेटेड डिविडेंड टू द दिस काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब ऐसी इस तरह की प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी पूरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब पूरा कंबाइंड प्रॉफिट उसको प्रोवाइड करेगी। द एरियर्स ऑफ डिविडेंड आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। और ये कब दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को देने के पहले, मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटने के पहले ही ये डिविडेंड पेड किया जाता है। मतलब लास्ट ईयर्स के जो भी डिविडेंड बाकी हैं उन सबको मिला के ये डिविडेंड उसको दिया जाएगा। किसके पहले, इक्विटी शेयर होल्डर के पहले, मीन्स पहले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट द डिविडेंड देयर आफ्टर द इक्विटी शेयर होल्डर। अंडरस्टूड स्टूडेंट, समझ में आया।
मीन्स जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहेगा, अगर उसने लास्ट 2 ईयर्स से उसको डिविडेंड नहीं मिले हैं, सो ही विल गेट डिविडेंड फॉर द होल 3 ईयर। उसको पिछले 3 सालों का डिविडेंड उसे मिलेगा। दैट इज नोन एज द क्यूमुलेटिव डिविडेंड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट वन इज द नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट क्या क्या पॉइंट है? नॉन क्यूमुलेटिव, मतलब ये एक दूसरा उसका जस्ट अपोजिट प्रेफरेंस शेयर है, जस्ट अपोजिट पार्ट है। नाउ व्हाट हैज रिटन, सी द डिविडेंड ऑन दिस शेयर डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड। अभी यहाँ पे क्या होता है कि सपोज वही एग्जांपल लेंगे हम लोग, इफ़ 2018 में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल नॉट गेट द डिविडेंड। 2019 में डिडेंट गेट द डिविडेंड, नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला। 2020 में क्या होगा? डिविडेंड कंपनी दे रही है, बट इस साल अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो कंपनी सिर्फ उसी साल का डिविडेंड देगी, मतलब सिर्फ 2020 का ही डिविडेंड देगी। पिछले 2 सालों का डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करेगी, पिछले 2 सालों का डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करेगी। सो इसमें मतलब क्या हो रहा है कि द डिविडेंड विल नॉट गेट एक्यूमुलेटेड, मतलब वो एक्यूमुलेटेड नहीं होगा, कंबाइंड नहीं होगा, प्लस नहीं होगा। ऐसा है कि अगर एक साल डिविडेंड नहीं मिला, उसके नेक्स्ट ईयर भी डिविडेंड नहीं मिला, और थर्ड ईयर अगर डिविडेंड मिल रहा है तो सिर्फ थर्ड ईयर का जितना डिविडेंड होगा वही मिलेगा, पिछले 2 सालों का डिविडेंड नहीं मिलेंगे। इस तरह के शेयर्स को क्या बोला जाता है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलेंगे? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ स्टूडेंट्स सी व्हाट हैज रिटन, डिविडेंड ऑन दिस शेयर डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड, मीन्स कंबाइंड नहीं होगा डिविडेंड। दिस मीन्स द डिविडेंड ऑन शेयर कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब इस तरह का जो डिविडेंड रहेगा वो किस में से पेड किया जाएगा? आउट ऑफ प्रॉफिट में पे किया जाएगा, लेकिन बस उसी ईयर के लिए। द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स इफ कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर, मतलब कि अगर कंपनी को उस साल प्रॉफिट नहीं होता है तो उनका डिविडेंड उन्हें नेक्स्ट ईयर भी नहीं मिलने वाला है, उनका डिविडेंड उन्हें नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर सिर्फ नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड ही मिलेगा। इस साल अगर कंपनी को डिविडेंड नहीं हुआ, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उनका डिविडेंड क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, मीन्स उसको नहीं मिलेगा। इफ़ कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर, इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। यस, जो भी शेयर होल्डर है इस तरह का, अगर कंपनी को सफिशिएंट या फिर एडुकेट प्रॉफिट नहीं हुआ, सो देयर डिविडेंड विल बी लैप्स एंड द शेयर होल्डर विल नॉट गेट दैट डिविडेंड इन नेक्स्ट ईयर। अगले साल उसको लास्ट ईयर का डिविडेंड नहीं मिलेगा। द शेयर होल्डर ओनली विल गेट द करेंट ईयर्स डिविडेंड इफ द कंपनी हैव द प्रॉफिट। अगर कंपनी को प्रॉफिट है तो सिर्फ करंट ईयर का डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज लास्ट ईयर का डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये नॉन क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव में कैसा है कि अगर लास्ट ईयर्स का डिविडेंड नहीं मिला है तो इस साल लास्ट ईयर का और करंट ईयर दोनों का डिविडेंड मिलेगा। बट नॉन क्यूमुलेटिव में कैसा है कि अगर लास्ट ईयर डिविडेंड नहीं मिला है तो इस साल अगर मिल रहा है तो सिर्फ इसी साल का, मीन्स करंट ईयर का मिलेगा, लास्ट ईयर का डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसमें एक्यूमुलेट नहीं होगा, प्लस होके नहीं मिलेगा, सिर्फ उसी साल का मिलेगा। Okay students, I think you will get understand. Next, third types of the preference share is the participating preference shares. Okay, now student, participating means क्या? Participating means हिस्सा लेना, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना। ओके, तो यहाँ भी स्टूडेंट कुछ ऐसा ही है। The holder of these shares are entitled to participate in surplus profit beside preferential dividend. ओके, अब ये ऐसा टाइप का प्रेफरेंस शेयर है कि यहाँ पे जो होल्डर्स होते हैं, मीन्स शेयर होल्डर मीन्स शेयर होल्डर, मतलब जो शेयर को होल्ड करते हैं, दैट पर्सन इज नोन एज द शेयर होल्डर। दे आर एंटाइटल, मतलब अधिकारी होते हैं किस चीज़ के? टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट। किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो? जो कंपनी का सरप्लस प्रॉफिट रहेगा उसमें। सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है कंपनी के पास, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। ओके, दे कैन पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड प्रेफरेंशियल डिविडेंड, मतलब प्रेफरेंशियल डिविडेंड के अलावा दे कैन आल्सो गेट द सरप्लस प्रॉफिट, मतलब वो कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा ले सकते हैं।
किसके अलावा? प्रेफरेंशियल डिविडेंड के अलावा। नाउ शन सी, समझे, एक एग्जाम्पल है। ओके, सपोज देयर हैज़ अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। इफ़ उन्होंने क्या किया, 10% प्रेफरेंस शेयर परचेस कर लिया। कितना कर लिया? 10%। ओके, अब कंपनी क्या करेगी उसे? कंपनी विल गिव हिम 10% के हिसाब से उसको डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। मतलब हर साल 10% फिक्स रेट उनका डिविडेंड उनको मिलेगा। ओके, बट अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी क्या करेगी? उस प्रेफरेंशियल डिविडेंड तो उसको देगी 10%। उसके अलावा कंपनी क्या करेगी? जो कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है उसमें से भी हिस्सा देगी। मतलब बियॉन्ड द प्रॉफिट, when the company earn more profit, so the shareholder will get more dividend, उसको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। अबो 10%, मतलब उस 10% से भी ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। वो 10% तो मिला ही है, उसके अलावा बियॉन्ड द 10% ही विल गेट द प्रॉफिट, एंड दैट टाइप्स ऑफ द शेयर होल्डर इज नोन एज द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इस तरह के शेयर होल्डर को क्या बोला? शेयर को क्या बोला जाएगा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मीन्स he will get more dividend beyond the 10% because he is the participating preference share, क्योंकि वो participating preference share है। इसके लिए उसे अगर कंपनी को प्रॉफिट हो गया, ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो अपने डिविडेंड के अलावा भी उसको प्रॉफिट मिलेगा। That types of share is known as the participating preference shares. Okay, student. Now see, student, what has it done? The holders of the shares are entitled to participate in surplus profit beside preferential dividend. Yes, वो जो भी कंपनी का surplus profit रहेगा उसमें क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा कि उसको प्रेफरेंस डिविडेंड मिलने वाला है तो भी। The surplus profit which remain after dividend has been paid to equity shareholder up to certain limit is distributed by the preference shareholder. जो भी surplus profit मिलेगा वो कब मिलेगा? पहले डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। उसके बाद अगर प्रॉफिट बच जाता है तो जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो, क्योंकि वो पार्टिसिपेटिंग है, दैट्स वाई जो भी सरप्लस बचा हुआ वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब उनको जो भी बचा हुआ सरप्लस है उसमें उनको हिस्सा मिलेगा। दैट्स वाई दे आर दी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है। इसके लिए वो अपना जो डिविडेंड है वो तो लेंगे ही, इसके अलावा they will get the more dividend beyond their percent, अपने परसेंट के अलावा भी उनको और प्रॉफिट मिलेगा। वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें ले सकते हैं। Now student, the fourth point is there, non participating preference share. Yes student, these kinds of preference share, they cannot participate in any surplus. They will get only their फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इनको सिर्फ इनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। वेदर द कंपनी विल अर्न मोर प्रॉफिट और लेस प्रॉफिट, चाहे कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो या कम प्रॉफिट हो, दे विल ओनली गेट देयर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इनको सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। वो कंपनी के किसी भी सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? कि जैसे स्टूडेंट टेक एग्जाम्पल, इफ़ एनी पर्सन परचेज 18% प्रेफरेंस शेयर, सो ही विल गेट डिविडेंड एट 18%। मतलब अगर किसी ने 18% प्रेफरेंस शेयर परचेस किए हैं तो उसको डिविडेंड किस पे मिलेगा? उसी 18% पे उसको डिविडेंड मिलेगा। बट व्हेन द कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट, अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, मोर प्रॉफिट हुआ, सो देन ओनली ही विल गेट ओनली 18%। मतलब तब भी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो भी उसको वही 18% ही डिविडेंड मिलने वाला है। मीन्स ही विल गेट ओनली फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। उसको सिर्फ वही 18% का फिक्स रेट डिविडेंड मिलने वाला है। ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा नहीं ले सकता। कि चाहे नो मैटर कि हाउ मच प्रॉफिट कंपनी अर्न, मतलब मैटर नहीं करता कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती है। ओके, इसके अलावा वेयर एज पार्टिसिपेटिंग कैन पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, सो द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कैन पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ओके,
क्योंकि कंपनी को एक्स्ट्रा इनकम हुआ है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट द नॉन पार्टिसिपेटिंग कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द surplus profit of the company. Okay students, now students the next one is the convertible preference shares. Yes, अभी convertible, the name suggests the types of shares. यही नेम क्या सजेस्ट करता है, ये कौन से टाइप का प्रेफरेंस शेयर्स हैं. The holder of these shares have a right to convert their preference share into equity shareholder. Yes, इस तरह का जो शेयर होल्डर रहेंगे उनको ये राइट होता है कि कुछ साल बाद मीन्स आफ्टर अ सर्टेन ईयर दे कैन चेंज देयर शेयर इनटू द इक्विटी शेयर. मतलब वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर में चेंज कर सकते हैं. मतलब अभी प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आफ्टर 4 ईयर दे कैन चेंज देयर शेयर इनटू द इक्विटी शेयर. मतलब उनको दे हैव द राइट टू चेंज देयर शेयर्स इनटू द इक्विटी share, and that type of share is known as the convertible preference share. Okay, now see what is written. The holder of these shares have a right to convert their preference share into equity shares. The conversion take place within a certain fixed period. Yes, at the time of the issue, the conversion period has fixed. मतलब कितने सालों में ये शेयर्स चेंज होगा इक्विटी में, वो फिक्स रहता है. वो एट द टाइम ऑफ इशू, मतलब कंपनी जब इशू करती है उसी टाइम पे फिक्स रहता है कि ये शेयर्स इतने सालों बाद एक क्या हो, किस में चेंज हो जाएगा, इक्विटी शेयर में बदल दिया जाएगा. ओके, मीन्स दैट काइंड ऑफ शेयर इज नोन एज अ कन्वर्टेबल शेयर. मीन्स द प्रेफरेंस शेयर दैट कैन बी कन्वर्टेड into the equity shares are known as the convertible preference share. मतलब वो शेयर्स जो कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, इनटू द इक्विटी शेयर्स आर नोन एज द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, नाउ अभी नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मीन्स दिस शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर होल्डर. मतलब वो प्रेफरेंस शेयर्स वो इशू होते हैं एंड दे विल बी ऑलवेज द प्रेफरेंस शेयर. वो हमेशा क्या रहेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेंगे. ओके, अभी इक्विटी शेयर क्या है, वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं. मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कन्वर्टिबल है, जो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. मतलब एक फिक्स पीरियड होएगा, एक स्पेसिफिक पीरियड होएगा, उसके अंदर ये क्या हो जाएंगे, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड दैट टाइप ऑफ शेयर इज नोन एज द कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. Okay, on the other hand, non-convertible shares are such that cannot be converted into the equity share. ये ऐसे होते हैं शेयर्स कि ये सिर्फ प्रेफरेंस में इशू होते हैं और प्रेफरेंस में ही रह जाते हैं, ये इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते. That types of share is known as the non-convertible preference shares. Now students, the second last point is the redeemable preference shares. Students, the name has indicate or suggest the types of the shares. redeemable मतलब always ready रहते हैं. शेयर्स विच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर, मतलब ऑलवेज क्या रहते हैं, रेडी रहते हैं. क्या करने के लिए, पेड होने के लिए. क्या होने के लिए, पेड होने के लिए. रिडीमेबल होते हैं, रिपेबल होते हैं. ये रिडीमेबल मीन्स रिपेबल. द शेयर्स विच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और कॉल्ड द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. स्टूडेंट, दिस काइंड्स ऑफ शेयर दे कैन बी रिपेबल आफ्टर अ सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कुछ सालों बाद ये क्या हो जाते हैं, रिडीम्ड हो जाते हैं. They are redeemed after a fixed period of time. मतलब they are the returnable, they are the repayable. A company limited by share is, if authorized by articles of association, issues redeemable preference shares. Okay, the such shares must be fully paid up. Yes, these kinds of shares which they can be redeemable, but it should be fully paid up. वो fully paid होने चाहिए. Okay. These shares are redeemed out of the divisible profit only or out of fresh issue of share made for this purpose. Okay, ये जो शेयर्स होते हैं दे आर दी रिपेबल और रिडीम. कैसे होंगे रिपेबल, मीन्स स्टूडेंट टेक द एग्जाम्पल. सपोज किसी पर्सन ने क्या किया है, हमारे कंपनी के शेयर्स परचेस किए हैं. तो जब एट द टाइम ऑफ इशू दे हैज़ अ फिक्स पीरियड कि आफ्टर दैट पीरियड द शेयर विल बी रिडीम. मतलब शेयर क्या करना पड़ेगा, उसको रीपे कर, मतलब कंपनी को वापस दे देना पड़ेगा.
क्या करना पड़ेगा, कंपनी को वापस दे देना पड़ेगा। मीन्स कंपनी अपने शेयर्स वापस से परचेस कर लेगी, ले लेगी। मतलब वो शेयर्स क्या हो जाएंगे, रिपेबल हो जाएंगे। जो शेयर होल्डर रहेगा वो कंपनी को शेयर्स वापस रिटर्न कर देगा। दैट टाइप्स ऑफ शेयर इज नोन एज द रिडीमेबल शेयर्स। जो लिमिटेड कंपनी होती है, जो कंपनी लिमिटेड होती है बाय द शेयर से, तो उनके आर्टिकल्स और ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोसीजर होता है कि रिडीमेबल शेयर्स वो क्या करती हैं, इशू कर सकती हैं। और वो एक प्रिस्क्राइब टाइम देती है कि इतने सालों बाद ये शेयर्स क्या हो जाएगा, कंपनी को रिटर्न हो जाएगा। शेयर होल्डर इन शेयर्स को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, रीपे कर देगा। ओके, एंड दैट काइंड ऑफ शेयर इज नोन एज द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसके अलावा जो अभी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है जो हैं वो रिडीम कहाँ से होंगे, मतलब अगर कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स अपने रिटर्न ले रही है, तो कंपनी अगर अपने शेयर्स रिटर्न ले रही है तो उसके एक्सचेंज में क्या देगी, शेयर होल्डर्स को उसकी कैपिटल देगी, जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में। अब वो कैपिटल कंपनी देगी कहाँ से रिटर्न करेगी कैपिटल, तो दैट कैपिटल विल बी रिटर्न फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी का जो प्रॉफिट आता है साल का, उस साल का या फिर लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट उसके पास है, उस प्रॉफिट में से ही उसको रिडीम्ड करेगी। मतलब उस शेयर को रिपेड कैसे करेगी, अपने करंट ईयर के जो प्रॉफिट होएगा, या फिर अगर उसके पास प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी क्या करेगी, नए शेयर्स इशू करेगी। और उन शेयर्स इशू करने पे जो उसको कैपिटल मिलेगा, जो इनकम मिलेगी, उस कैपिटल से वो अपने प्रीवियस शेयर को क्या करेगी, रिडीम्ड करेगी। यू आर गेटिंग स्टूडेंट्स, मतलब क्या है समझो। ये जो रिडीमेबल शेयर्स ऐसे होते हैं कि जब ये इशू होते हैं एट दैट टाइम उनका एक फिक्स पीरियड होता है कि इतने साल बाद एक कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर्स वापस लेने पड़ेंगे। और शेयर होल्डर को भी उनके शेयर्स उनको दे देने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे। मतलब ये रिटर्नेबल होते हैं, रिपेबल होते हैं। ओके, सो अब कंपनी उस शेयर्स को जब रिटर्न लेगी, ओके, तो शेयर होल्डर ने क्या दिया है, कैपिटल दिया है, फंड दिया है कंपनी को, तभी तो शेयर्स लिए हैं उसने। तो वो फंड कंपनी कहाँ से देगी, तो कंपनी क्या करेगी, उसके लिए नए शेयर्स इशू करेगी। अदरवाइज जो कंपनी को प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से देगी, या फिर अगर प्रॉफिट नहीं है तो नए शेयर्स क्या करेगी, कंपनी इशू करेगी। क्या करने के लिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, उनको वापस रिटर्न करने के लिए। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नाउ दिस काइंड्स ऑफ शेयर विच आर नॉट रेडीमेबल। ये शेयर ऐसे होते हैं जो रेडीमेबल नहीं होते हैं। दे आर ओनली पेबल ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, एंड दैट आर कॉल्ड द इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इन्हें क्या बोला जाएगा, इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। दिस शेयर्स विच आर नॉट redeemable that are known as the irredeemable preference shares मीन्स द शेयर कैपिटल। अभी रिडीम कब होंगे, मतलब अगर रिडीमेबल नहीं, रिडीमेबल नहीं है, रिपेबल नहीं होंगे, रिटर्न नहीं होंगे, तो कब दिए जाएंगे, कब रिटर्न कब होंगे। सो ये रिटर्न कब होंगे, दिस शेयर्स कैपिटल इज पेबल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मतलब जब कंपनी बंद होएगी, जब कंपनी लिक्विड होएगी, एट दैट टाइम द कंपनी रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर्स। उस समय क्या करेगी, कंपनी रिटर्न करेगी इस प्रेफरेंस शेयर्स। किसको, इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बट स्टूडेंट, एज पर सेक्शन 55(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030, कंपनी कैन नॉट इशू द इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब कि कंपनी एक्ट 2013 के जो सेक्शन 55 में 1 क्लॉज 1 है, उसमें क्या लिखा गया है कि कोई भी कंपनी इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। ओके स्टूडेंट, so this is the kinds of the irredeemable preference shares. Now student, today we had learned total 8 types of the preference shares. That was cumulative and non-cumulative, participating and non-participating, convertible and non-convertible, redeemable and irredeemable. Now student, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के लेक्चर्स स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।